Good morning, students. I welcome all my dear students in the English online lecture of Standard 2nd. Myself, Miss Pooja, I am going to teach you the English of Standard 2nd. Students, as you all know, that we are revising our English revision that is very important for our semester exams. Yes or no? And you all know that our semester exams are soon starting. So students, in the previous online lecture, we have completed our poem number 2.1, Chameleons, our lesson 2.2, and another lesson 2.3. So, in our today's online lecture, we are going to learn from lesson number 2.4 to 2.8. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों, आज के हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर में हम इंग्लिश रिवीजन चैप्टर नंबर 2.4 से स्टार्ट करेंगे 2.8 तक। आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में जो नोट्स मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ वो आपको आपके इंग्लिश नोटबुक में वन टाइम लिख के लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग आपकी इंग्लिश की नोटबुक और साथ ही साथ पेंसिल अपने पास रखो आज के इस ऑनलाइन लेक्चर फॉलो करने के लिए। स्टूडेंट्स, नाउ I am going to explain you the notes, the revision which is going to come in the exam. Let us see. English revision of notes. बच्चों, आपको आपके इंग्लिश के नोटबुक में हेडिंग डालना है इंग्लिश रिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमारा रिवीजन, हम एग्ज़ाम जो सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आप आपकी इंग्लिश नोटबुक और साथ ही में पेंसिल कैरी करो। नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर नॉट हैविंग द 4-line notebook will open their any rough notebook. Okay students, so let us begin with our today's online lecture of revision. Lesson number 2.4, story time, unity is strength. Now students, put the heading in your notebook, English revision, lesson number 2.4, story time, unity is strength. बच्चों, आपको हेडिंग डालना है लेसन 2.4. Question number 1, answer the following. Now students, I have explained you this lesson, story time. As you all know, this lesson was very important, and in your 4th practice test also the questions from this lesson came. You know the story of 4 sons, yes or no? Do you all remember? Okay, so in our today's lecture we are going to study the answer the following. Question number 1. First one, why was the old man worried? Answer the following. प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है कि ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी चिंतित क्यों था? Why was old man worried? The old man was worried because his sons always quarreled with each other. ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, वो चिंतित क्यों था? क्योंकि उसके चारों बेटे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, इसीलिए वो वरीड था। क्वेरल्ड मतलब फाइटिंग, यानी चारों बेटों की आपस में बनती नहीं थी, उनमें झगड़ा होता रहता था, इसीलिए जो ओल्ड मैन, जो फादर थे, वो बहुत ही चिंतित थे। Why was the old man worried? Okay students, write the answer in the notebook. The old man was worried because his sons always quarreled with each other. Second one, बच्चों, second question, what happened when the sons tried to break the bundle of the sticks? क्या हुआ जब बेटों ने
स्टिक्स यानी जो बंडल थे, लकड़ियों के बंडल यानी गुच्छा था जो लकड़ियों का, उन्हें तोड़ने की कोशिश की, तब क्या होता है? आंसर, व्हेन द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, द स्टिक्स इन द बंडल रिमेंड अनब्रोकन। जब बेटों ने कोशिश की लकड़ियाँ तोड़ने के लिए बंडल में से, तो वो बंडल में बहुत सारी लकड़ियाँ थी और वो नहीं टूट पाई। When the sons, repeat the answer students along with me, बच्चों मेरे साथ बोलो। When the sons tried to break the bundle of sticks, the sticks in the bundle remained unbroken. Okay students, now let us see the third one. What lesson did the sons learn? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लिखा है कि बेटों ने लास्ट में इस लेसन के कौन सा ऐसा लेसन यानी बेटों को आखिरी में कौन सी सीख मिली, सीख यानी कौन सा मॉरल मिला। आंसर इज द सन्स लर्नड द लेसन दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Again I am repeating, what lesson did the sons learn? Answer, the sons learnt the lesson that unity is strength. बच्चों, अब सन्स बेटों ने कौन सा लेसन सीखा, मॉरल उनको कौन सी सीख मिली? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी यानी एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता में ही ताकत होती है। द सन्स लर्न द लेसन दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि चारों भाइयों ने एक साथ जब मेहनत से काम किया तो क्या हुआ, वही चीज़ आसान हो गई। ओके स्टूडेंट्स, द सन्स लर्नड द लेसन दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बेटों ने लेसन पढ़ा, एकता में ही ताकत होती है। नाउ रिमूव द नेक्स्ट पेज, वी आर गोइंग टू सी लेसन नंबर 2.5। लेसन नंबर 2.5, लैंग्वेज स्टडी, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। In the grammar, I have explained you the topic of describing words. What are the describing words? You all know. The describing words are that words which describe in the sentence, which describe the quality or which describes about what is being related in the sentence. बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें क्या डिस्क्राइब करते हैं? क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं कोई चीज़ की, उसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको आपके मन से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड सूट होता है वो क्वेश्चन में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर डैश फॉर हेल्थ। हरी सब्जियाँ और फल हमारे सेहत के लिए कैसा होता है? गुड। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, यानी सेहत के लिए अच्छा होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। सेकेंड वन, देयर आर डैश स्टार्स इन द स्काई। बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर डैश स्टार्स इन द स्काई। स्काई में, आसमान में स्टार्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। सो वी हैव रिटन मैनी, MANY, मैनी। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। थर्ड वन, एंड्स आर वेरी डैश। चींटियाँ बहुत ही कैसी होती है? छोटी होती है, टाइनी। एंड्स आर वेरी टाइनी, TINY, टाइनी। फोर्थ वन, आई हैव अ डैश पेन। मेरे पास कौन सी पेन है? यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट ब्लैक, ब्लू, रेड, any color you can describe. I have written here blue pen. You can write ink pen, gel pen, ball pen, any describing word you can write in the sentence. Okay students,
So in this lesson there are only 4 describing words. The short question was there from this lesson. Now we are going to study the next poem 2.6. बच्चों इस लेसन में से 2.5 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स था. अब आपको हर एक लेसन न्यू पेज पे लिखना है. अब आप न्यू पेज ओपन करोगे. पोएम नंबर 2.6 फ्रेंड्स फॉरएवर. बच्चों ये पोएम 2.6 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जो क्वेश्चन नंबर 1 है राइमिंग वर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द पोएम, दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ. राइमिंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? जिनका साउंड सिमिलर होता है, जिनका साउंड सेम होता है. तो आपको पहले हेडिंग डालना है, लेसन का नाम, पोएम का नाम डालना है 2.6 फ्रेंड्स फॉरएवर रिवीजन, एंड देन यू विल स्टार्ट. और फिर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ, जैसे वीडियो में मैंने बताया है. फर्स्ट वन इज OLD ओल्ड. द old rhyming word of old is gold, GOLD gold. Second one is SEAC. The rhyming word of C is BEB. The third one is end, END end. The rhyming word of end is friend, FRIEND friend. Fourth one is new, NEW new. The rhyming word of new is few, FEW few. Fifth one is land, LAND land. The rhyming word of land is AND and. Okay. And the sixth one is round, ROUND round. The rhyming word of round is found, FOUND found. Okay students, so the rhyming word is first one old, gold, CB and friend, new, few, land and round found. Question number 2, complete the sentence from the poem. Now students, question number 2 is complete the sentence. बच्चों ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है. Now students you can see question number 2 is very important for your exam. It can come, complete the sentence. Now half sentence is given, half line from the poem is given, you have to complete the full line. So let us see. First one, a circle is round dash, it has no end. Answer will come IT it, HAS has no, NO END end. A circle is round, it has no end. Okay, सर्कल राउंड होता है लेकिन उसका कोई किनारा नहीं होता, उसका कोई पॉइंट नहीं होता, उसका कोई एंड नहीं होता. सेकेंड वन, दैट्स हाउ लॉन्ग डैश, दैट्स हाउ लॉन्ग आई विल बी योर फ्रेंड. उसी प्रकार से जैसे सर्कल का राउंड का कोई एंड नहीं होता, उसी तरह से हमारी फ्रेंडशिप का भी कोई एंड नहीं है. थर्ड वन, अक्रॉस द लैंड डैश, अक्रॉस द सी. लैंड यानी ज़मीन, सी यानी समंदर. अक्रॉस द लैंड, उस लैंड के ज़मीन के उस पार और सी के समंदर के इस पार. अक्रॉस द लैंड, अक्रॉस द सी. फोर्थ वन, फ्रेंड्स फॉर एवर वी विल ऑलवेज बी. WEVLL will always, ALWAYS always, BEB फ्रेंड्स फॉर एवर यानी हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे. फ्रेंड्स फॉर एवर विल ऑलवेज बी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2.6 poem is completed. Now open the new page and write the heading 2.7. Lesson number 2.7. Students, write in the new page. Let's speak.
द चैप्टर्स नेम इज, लेसन्स नेम इज लेट्स स्पीक। बच्चों आपको लेसन नंबर 2.7 न्यू पेज में लिखना है और हेडिंग डालना है लेट्स स्पीक। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। आपको एक वर्ड में आंसर देना है, एक सेंटेंस या एक वर्ड में। फर्स्ट वन, व्हाट इज द टीचर एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग इन क्लास। टीचर और बच्चे क्लास में क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हाट इज द टीचर एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग इन क्लास। आंसर, द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग भेल इन क्लास। टीचर यानी टीचर जो पढ़ाती है वो, और बच्चे क्लास में भेल स्नैक्स जो होता है भेल वो प्रिपेयर कर रहे हैं। द आंसर इज द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग भेल इन क्लास। सेकेंड वन, नेम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग भेल। आपको चीज़ें बतानी है जो भेल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंग्रेडिएंट्स यानी जो चीज़ें भेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप घर पर भेल खाते हो राइट स्टूडेंट्स, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है वो आपको लिखना है। स्टूडेंट्स we have to name the ingredients, means what all things we require for preparing the bhel. This is very important answer. puffed rice, puffed rice यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में खुरमुरा। फरसान, chopped onions, tomatoes, coriander leaves, salt, lemon juice. Again I am repeating the answer. puffed rice, फरसान, chopped onions, tomatoes, coriander leaves, salt and lemon juice. puffed rice यानी कुरमुरा, फरसान, chopped onions यानी कटे हुए प्याज, टमाटर, हरा धनिया का पत्ता, salt यानी नमक, lemon juice यानी नींबू का रस। ये सारी चीज़ें लगती है भेल बनाने के लिए। Okay students, these all are the ingredients required for preparing the bhel. This answer is important, so students you have to write the materials, ingredients required for preparing the bhel. Only 2 answers are there from lesson number 2.7. Now we are going to study lesson number 2.8. So open your new page and write the heading lesson number 2.8. Lesson number 2.8 is reading time. Now in this lesson we have studied about the musical instruments. You all remember students, there were many musical instruments that we have studied, and also the activity was given to you all to stick the picture of 5 musical instrument in your notebook. Now in the exam the picture of musical instrument will be given. You have to write the name of the musical instrument. Okay students, question number 1 is look at the picture and write the names of the musical instruments. बच्चों आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो गाने बजाने में इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो चीज़ें लगती है उसका पिक्चर ड्रॉ किया जाएगा, और स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसका नेम लिखना है यानी नाम लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर है हारमोनियम। नाउ पेरेंट्स कैन हेल्प द स्टूडेंट्स इन ड्राइंग इन द नोटबुक। पेरेंट्स बच्चों को हेल्प कर सकते हैं ड्रॉ करके देने के लिए नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर है हारमोनियम की। तो एग्ज़ाम में पिक्चर दिया गया रहेगा, आपको स्पेलिंग लिखना है HARMONIUM, harmonium. The first picture is harmonium. HARMONIUM, harmonium. Second one is cymbals. The spelling of cymbals is CYMBALS, cymbals. Okay. The third one is tabla daga. TABLA, tabla. DAGGA, daga, tabla daga. And the last one is flute. FLUTE, flute यानी बांसुरी।
फर्स्ट है हारमोनियम, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी हिंदी में पेटी कहते हैं, इवन मराठी में हारमोनियम जो संगीत के लिए यूज़ होता है। सेकंड है सिम्बल्स, आपने देखा होगा सिम्बल्स जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो आरती करने के लिए यूज़ होता है और इससे हाथों से बजाया जाता है, दोनों हाथों में पकड़ा जाता है और इससे बजाया जाता है। तबला दागा, ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे संगीत के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्लूट यानी आप सभी जानते हैं बांसुरी, लॉर्ड कृष्णा के पास बांसुरी थी। यस और नो स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट वन इज हारमोनियम, सेकेंड वन इज सिम्बल्स, थर्ड वन इज तबला दागा एंड द फोर्थ वन इज फ्लूट। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट इट इन योर इंग्लिश नोटबुक 1 टाइम। बच्चों, आपको सब रिवीजन आपके इंग्लिश नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे होम फॉर द नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। थैंक यू।